students. Today we will discuss about electric field line or electric line of force. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक है, चला हुआ है। इसके बाद ये हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन both are the same thing, and how you will define it and how you will explain it and what are the properties regarding this we will explain here. First of all, what do we mean by electric field line? Electric field lines or electric line of force, what do you mean? Now in both terms you see line, here is line and second has a line. So when a charge is moved along a line and if it is free to do so, then it will be electric field line or electric line of force. जब कोई चार्ज एक लाइन के अलोंग मूव करता है और वो ऐसा करने में फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, तो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ साइड में एक्सप्लेन करें कि ये लाइन है और इसके अलोंग अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस लाइन के अलोंग जा रहा है, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैसे भी पॉजिटिव क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर व्यू डायरेक्टेड होती हैं। तो इस ढंग से हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ, रास्ता हुआ, along which a unit positive charge would move if it is free to do so. अगर ये ऐसा करने में इंडिपेंडेंट है तो then it will be the electric field line. So electric field line is the path along which a unit positive charge would move if it is free to do so. Understand? So this is the definition of the electric field lines. Now properties. But properties of electric field lines, we are going to explain properties of electric field lines here. First property is that two electric field lines या two field lines never intersect with each other. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट जो है वो किसी डायरेक्शंस में एक वैल्यू देता है। तो अगर वो एक पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं, तो जैसे मान लो ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक E1 और दूसरी E2, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चार्ज जो है इस चार्ज की अलग वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस चार्ज की अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि चार्ज जो होता है उसकी फील्ड लाइंस अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं ऐसे। तो अगर ये आपस में क्रॉस कर रही हैं तो एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट के ऊपर केवल एक ही वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दो वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इफ दे डू सो देन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ फील्ड एट सिंगल पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। Understand? Which is not possible. So first property is that electric field lines never intersect, and if they intersect, if we assume we have not seen that the two electric field lines intersect with each other. If we take from our side that two electric field lines intersect with each other, then there are the two values of electric field lines at a single point, which is not possible. At a single point, only the one value of the electric field line is possible. Second property is that
electric field lines begins from positive charge and terminate at negative charge. Means that it will start from the positive Q charge and end at negative Q charge. Like of this, because field lines due to positive charge is in radially directed outward directions, and due to negative charge is radially inward directions. So negative Q charge is the charge where the field lines terminate, where the field lines finished, terminate होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, चलती कहाँ से है, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहाँ होती हैं, नेगेटिव चार्ज में. नेक्स्ट इज tangent to field lines. Tangent to field lines, if you will see a field lines and if you draw a tangent to these field lines, then tangent to field line give the direction of electric field at that point. इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा कौन, टेंजेंट टू फील्ड लाइन. तो टेंजेंट टू फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट can be find out by drawing the tangent to that field lines. Understand? So tangent to that field lines will be give you directions of electric field at that point. Now next is property number 4. Electric field lines are imaginary. They are imaginary. You will imagine that here is the electric field lines, here will be the electric field lines. You will not really see that. So electric field lines are imaginary. Imagines की जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं. Electric field lines do not form closed loops. They do not form closed loops. And 6 is that electric field lines contract lengthwise. They will contract lengthwise. Lengthwise contract करती हैं. And 7 is that electric field lines exert a lateral pressure on each other. एक दूसरे के ऊपर वो lateral pressure लगाती हैं. Understand? And point number 8, electric field lines perpendicular to the surface of positive charge and negative charge sphere. हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मानो स्फीयर है, जब भी इसमें एंटर होने की कोशिश करेगी तो वो परपेंडिकुलर होगी इसके, किसके, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के. चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. या लीव भी करेगी तो भी वो परपेंडिकुलरली लीव करेगी. अगर यहाँ से जा रही है तो यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. जो भी फील्ड लाइन है जैसे भी जा रही है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो. 9th point is that electric field lines do not pass through conductors. Electric field lines कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती. जैसे हमारे पास मान लो ये कंडक्टर है, अगर हम इसको कंडक्टर मान रहे हैं, अगर हम यहां पर कंडक्टर मानते हैं, ये मान लो ये कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से यहां दिखाई तो देंगी परंतु अंदर जीरो होंगी, और यहां आपको दिखाई देंगी. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां जीरो है, अंदर क्या है, जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. याद रखना कि कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, then inside the conductor electric field is always zero, because the net charge inside the conductor is zero, because positive and negative charges are equal, so it is zero. Because number of proton is equal to number of electrons. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसी भी मेटल में, इसलिए वो न्यूट्रल होती है. जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तब ये एक दूसरे की ओर भागते हैं. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, मींस electric field inside the conductor is zero. Now next, number of electric field lines are proportional to magnitude of charges. कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितने चार्जेस ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ along which a unit positive charge would move if it is free to do so. अगर ये ऐसा करने में सक्षम है तो इसके अलाउंग जो है आप लोग ये कह सकते हैं
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। थैंक यू।